Welcome to today's class. Today we will discuss the topic skeletal muscles. So skeletal muscles are found attached to bones. So in the last videos we have discussed smooth muscles and cardiac muscles, and today we will discuss skeletal muscles. These muscles are found attached to bones. स्केलेटल मसल्स बोन्स को अटैच होती है और इसीलिए इस मसल्स को स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। तो स्केलेटल मसल्स को हम स्टडी करेंगे कुछ डायग्राम्स की हेल्प से। सबसे पहला पॉइंट है दीज मसल्स आर फाउंड अटैच टू बोन्स। यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। सो सी दिस इज़, ये जो बोन है ये है अपर आर्म का बोन। This is humerus. See, this is humerus. And lower arm का bone, lower arm में two bones होते हैं. There are two bones in the lower arm, and these two bones are radius and ulna. So ये lower arm का bone मैं draw कर रही हूँ, radius and ulna. So this is humerus and these are radius and ulna, and see here tendons are present. Tendons, with the help of tendons, skeletal muscles are attached to bones. So these are tendons, and see, this is skeletal muscle. ये एक मसल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। ये जो मसल है इट इज़ बाइसेप्स, इसको बोला जाता है। ये मसल का नाम है बाइसेप्स, एंड दिस इज ट्राइसेप। biceps and triceps. See, so here we have clear first point, that is skeletal muscles are found attached to bones. यहाँ पर हम इसको लेबलिंग कर लेंगे। It is biceps, humerus. This bone is called as humerus, and these two bones are called as radius and ulna. These two bones are called as radius and ulna. ये जो पीछे वाली मसल है ये है ट्राइसेप. इट इज triceps. So in this way muscles are found attached to bone. So here first point is clear, and these muscles are found attached to bones. स्केलेटल मसल्स बोन्स को अटैच होती है। इसके बाद हम इस मसल को, जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करती हूँ मैं। यहाँ पर ये इतना पोर्शन जो है हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो ये बोन है, ये बोन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज बोन। तो यहाँ पर होता है। सो दिस इज टेंडन।
Tendon is the connective tissue with the help of which muscles are attached to bones. ये मसल हम अब इस मसल्स को हम ड्रॉ करेंगे. So each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles or fascicles. हम ये देखिए, हर एक मसल, each muscle in our body is made up of number of muscle bundles or fascicles. In this way, with the help of these diagrams, we will study structure of muscle. So, ये हैं fascicles और muscle bundles. These are fascicles or muscle bundles. Fascicles और muscle bundles. ये एक skeletal muscle है और इस स्केलेटल मसल का जो कवरिंग है, द कवरिंग ऑफ स्केलेटल मसल is made up of collagenous connective tissue layer. It is called as epimysium और fascia. तो ये जो कवरिंग दिख रहा है, ये पूरा जो कवरिंग है ये स्केलेटल मसल का, दिस कवरिंग इज, इट इज़ कॉल्ड एज, मैं यहाँ लेबल कर रही हूँ, देखिए. तो ये जो कवरिंग है, ये पूरा जो कवर है स्केलेटल मसल का, दिस इज़ epimysium. It is called as epimysium. Epimysium, or it is also called as fascia, and it is made up of collagenous connective tissue. So each muscle is made up of number of muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called epimysium or fascia. Epimysium और fascia. तो ये एक skeletal muscle है, and ये जो skeletal muscle है, it consists of large number of muscle bundles और fascicles. तो ये जो है these are fascicles. क्या है ये है fascicles. These are fascicles. So each muscle, organized muscle in our body is made up of number of muscle bundles or fascicles. Number of muscle bundles or fascicles held together by common collagenous connective tissue layer called epimysium or fascia. Then each muscle bundle contain
a number of muscle fibers. ये जो है ये this is ये एक सिंगल fascicle है. So this is fascicle. ये सिंगल fascicle है. It is fascicle. So this is fascicle. And ये जो fascicle, सिंगल fascicle जो है, इसका जो कवरिंग है, it is covered by a layer that is called as पेरीमाइसियम. इसका जो कवरिंग है, ये एक सिंगल fascicle है. मैंने ड्रॉ किया, मतलब ये जो fascicle है इसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया एंड इट इज़ कवर्ड बाय पेरीमाइसियम. तो इसका ये जो कवरिंग है, यहाँ पर मैं इसको लेबल दे देती हूँ, दैट इज़ पेरीमाइसियम. तो इसके कवरिंग को क्या बोलेंगे हम? इट इज़ कॉल्ड एज पेरीमाइसियम. सो दिस इज़ पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम हो गया ये. इसका जो कवर है दैट इज़ पेरीमाइसियम. एंड ये जो fascicle है, fascicle के अंदर ये क्या है? ये है मसल फाइबर. दिस इज मसल फाइबर दैट इज कॉल्ड एज मायोफाइबर. सो ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर. तो ये हो गया एक मसल बंडल जिसे हम बोलते हैं fascicle. तो इसके अंदर ये जो दिख रहे, देखिए ये fascicles है. हर एक fascicle के अंदर एक fascicle मतलब मसल बंडल, एंड ईच fascicle कंसिस्ट ऑफ मेनी मसल फाइबर्स कॉल्ड मायोफाइबर्स. तो इसके अंदर हमें ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है मसल फाइबर्स दैट इज़ मायोफाइबर्स. तो दीज आर मायोफाइबर्स. तो हम इसको भी लेबल कर देते हैं. ये मायोफाइबर्स है. दीज आर मायोफाइबर्स. तो यहाँ पर मैंने ये लेबल कर दिया. दीज आर मायोफाइबर्स. एंड ये एक सिंगल मायोफाइबर है. दिस इज मायोफाइबर. सिंगल मायोफाइबर है ये. सो each myofiber is covered by sarcolemma. मायोफाइबर मतलब ये एक सेल हो गई, मसल सेल. मसल की जो इंडिविजुअल सेल होती है दैट इज़ कॉल्ड एज मायोफाइबर. क्योंकि मसल की जो सेल होती है वो इलोंगेटेड होती है एंड इट इज़ कॉल्ड एज मसल फाइबर और मायोफाइबर. तो fascicle मतलब मसल बंडल. fascicles, ये fascicles ये स्केलेटल मसल है. स्केलेटल मसल्स में देखिए ये बंडल ऑफ क्या बोलेंगे हम इसे? मसल बंडल या फिर fascicles. एक इंडिविजुअल fascicle है ये. तो ये जो fascicles है it is covered by common connective tissue sheath that is called as epimysium or fascia. Then each fascicle is covered by perimysium. ये एक fascicle it is covered by perimysium and each fascicle contain large number of muscle fibers called myofibers and it is covered by sarcolemma. तो ये एक सिंगल मसल फाइबर हो गया. इट इज़ कवर्ड बाय इसका जो कवरिंग है दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज
सार्कोलेमा। तो इसका जो कवरिंग है दिस इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। तो इस कवरिंग का नाम क्या है? इट इज़ कॉल्ड एज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ सार्कोलेमा मतलब क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक सेल जो होती है, each cell is covered by plasma membrane. So muscle cell that is called as muscle fiber is also covered by plasma membrane, and plasma membrane of muscle fiber or muscle cell is called as sarcolemma, and the cytoplasm of this muscle cell or muscle fiber is called as sarcoplasm. तो ये एक मसल एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस मसल सेल और मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। तो ये एक मसल सेल हो गई, और इस मसल सेल में पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स होते हैं। सो मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइबर में क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल्स। तो इसके अंदर जो है ये है मायोफाइब्रिल्स। देखिए जो मायोफाइबर है, मायोफाइबर मतलब मसल सेल, मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में होते हैं मायोफाइबर्स। तो ये जो है दीज आर सार्कोप्लाज्म में होते हैं पैरेलली अरेंज कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स दैट इज कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। तो ये जो है ये इसे हम लेबल कर देते हैं। तो ये है मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स एंड से हम लेबल कर देंगे these are मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल है एंड पैरेलली अरेंज है। वो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स है और वो पैरेलली अरेंज है मसल सेल के साइटोप्लाज्म में, और इसलिए मसल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो शिफ्ट होता है मसल सेल में। मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें पैरेलली अरेंज ये कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। एंड इसीलिए क्या होता है कि जो मसल सेल का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ऐसे शिफ्ट होता है पेरीफेरी पे। तो इसे भी हम लेबल कर देंगे। सो ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। सो दिस इज न्यूक्लियस। स्केलेटल मसल की जो सेल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। देन ये मायोफाइब्रिल जो है, हर एक मायोफाइब्रिल में क्या होते हैं? हर एक मायोफाइब्रिल, ईच मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ रिपीटेड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर। तो ये हो गए सार्कोमियर। तो ये हो गए सार्कोमियर। तो इस तरह से देखिए ये हो गया स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। इसके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। हर एक पॉइंट को हम अब लिखेंगे। हमने तो मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मसल का स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया। अब इसके जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। तो इसका पहला पॉइंट है स्केलेटल मसल्स आर फाउंड अटैच टू बोन्स। ये हो गया पहला पॉइंट, ये क्लियर हो गया। इसका सेकंड पॉइंट है कि ईच ऑर्गेनाइज skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundle or fascicles. So each skeletal muscle made up of number of
number of muscle bundle or fascicles muscle bundle और fascicles। तो ये एक skeletal muscle है और इसमें बहुत सारे ये है fascicles। So these fascicles held together by common collagenous connective tissue layer called fascia. Fascicles held together by collagenous connective tissue layer, collagenous connective tissue layer called fascia और एपीमाइसियम। फैसिया और एपीमाइसियम। डायग्राम में मैंने एपीमाइसियम लेबल दिया है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में फैसिया यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसका, ईच फैसिकल इज कवर्ड बाय पेरीमाइसियम। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ईच फैसिकल कवर्ड बाय पेरीमाइसियम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ईच फैसिकल कवर्ड बाय पेरीमाइसियम ईच फैसिकल कवर्ड बाय पेरीमाइसियम। तो ये क्या है, पेरीमाइसियम। ईच फैसिकल कंसिस्ट ऑफ many muscle fibers that is called as myofibers, and myofibers covered by sarcolemma। तो ये क्या है, मायोफाइबर। ईच मायोफाइबर, ये एक मसल की सेल है, इंडिविजुअल सेल है। मायोफाइबर इट इज़ कवर्ड बाय सार्कोलेमा। एंड ये जो मायोफाइबर्स है, मायोफाइबर each myofiber contain parallelly arranged myofibrils। तो हर एक मायोफाइबर में पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ये मायोफाइब्रिल्स है जो मसल सेल का, मायोफाइबर का जो साइटोप्लाज्म है, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। एंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, दैट इज मायोफाइबर, many parallelly arranged myofibrils are present, and therefore nucleus is shifted towards periphery। तो न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट हो गया, पेरीफेरी पे शिफ्ट हो गया। and each myofiber is made each myofibril is made up of repeated functional units called sarcomeres, and साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म of
मायोफाइबर्स, called सार्कोप्लाज्म। तो ये हो गया आज हमारा जो हमने थोड़ा सा कि कंप्लीट किया है। ये पहला पार्ट हो गया स्केलेटल मसल का। सार्कोमियर को डिटेल में पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो ये यहाँ पर हमने आज स्केलेटल मसल्स के कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने आज डिस्कस किए।